Welcome. Today I have come with class 12 English core. मतलब class 12th English core Flamingo book के सारे chapters, all the chapters from this book I will cover. It will consist of summary, questions, multiple choice questions, और I hope you'll enjoy this a lot because ये चैप्टर मैं आपको सिर्फ समराइज़ नहीं करूँगा. I will just help you in English also, मीन्स हिंदी और इंग्लिश का मेल. तो छोड़िएगा नहीं बीच में वीडियो को, स्किप मत करिएगा एंड वॉच इट टिल द एंड बिकॉज ये वीडियो आज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये वन शॉट है. मतलब आपको पूरी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपने जस्ट ये वीडियो देख लिया एंड यू विल बी एबल टू answer the questions from any of the chapters. So wasting time is not good. Let me start with the first chapter. Already I have made one for the last lesson exclusively. You can watch on my channel. But एक बार फिर से because I am trying to connect you with all the chapters. So पहला chapter, the last lesson. The story is set during the Franco-Prussian War. A boy named Franz goes to school and discovers that it is the last French lesson because Germany has ordered that only German be taught in schools of Alsace and Lorraine. Teacher M. Hamel becomes emotional, explains the importance of one's mother tongue. Franz realizes the value of education too late. इस चैप्टर को पढ़ते समय just be very careful. लिंग्विस्टिक शमनिज़म एक वर्ड आएगा और ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट मीन्स डोमिनेशन ऑफ एनी लैंग्वेज. जैसे यहाँ पे जिसने भी जीत हासिल की अब उसने अपनी लैंग्वेज इम्पोज कर दी वहाँ पे. तो एक तो ये है और दूसरी बात है दैट फ्रेंच, दैट लिटिल बॉय जो कि अभी तक नहीं समझता था कि दैट द मदर टंग और द नेशनल लैंग्वेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. उसे जब ये पता चल रहा है कि लैंग्वेज अब नहीं पढ़ाई जाएगी, ही इज़ हर्ट, teacher is hurt, all the people over there are realizing their mistake. पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं. What message does the last lesson convey about language? The story shows that language is part of cultural identity. Losing one's language means losing freedom and heritage. People often value something only after it is taken away. अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत. समथिंग लाइक दैट इज़ हियर द समरी ऑफ दिस चैप्टर. एंड नाउ आई एम स्टार्टिंग विद MCQ. Who was Franz afraid of? And the correct answer is he was afraid of his teacher M. Hamel. Why was the lesson the last one? School closed, teacher retired, German order, holiday. So here the answer is German order. Lost spring, दूसरा chapter. Chapter talks about child labor in India. Two children are highlighted, साहिब and मुकेश. तो ये कहानी है उन दो बच्चों की. एक है रैक पिकर इन सीमापुरी and the other one is working in a glass bangle factory of Firozabad. Sahib dreams of education, but he has to work to survive. उसके पास option नहीं है, he cannot go to a school. Mukesh dreams of becoming a motor mechanic and escaping poverty. Yeah students, ये तो बहुत ही नॉर्मल बात लग रही है, कोई मोटर मैकेनिक बनना चाहता है. बट द थिंग इज़ इस चैप्टर में ये बताया गया है कि दे हैड बीन वर्किंग सिंस जनरेशन वाइज वो वही काम कर रहे थे, वो उससे बाहर नहीं आ सकते थे. वही ग्लास फैक्ट्री, वही आँखों की रोशनी का जाना, वही अंधेरे कमरे. और यहाँ पे कोई एक बच्चा जो ये सोच रहा है कि मुझे कुछ अलग करना है. दैट्स वाई द वर्ड मोटर मैकेनिक इज़ नॉट वेरी स्मॉल. नाउ लॉन्गर क्वेश्चन. हाउ इज़ चाइल्डहुड लॉस्ट इन द स्टोरी? Children are forced into labor because of poverty and social system. They cannot enjoy school, play or freedom. तो ये just help करने के लिए है. Otherwise, if it's a long answer question, you have to take help of these points and you can write more. Now there is a MCQ. Who wants to become a motor mechanic? And you know the answer is Mukesh. Next chapter, deep water. William Douglas develops a fear of water after a childhood incident. Later, another accident in a swimming pool increases his fear. He decides to overcome it through
training and finally conquers his fear. तो विलियम डगलस की कहानी है जो पानी से डरने लगता है. इन द चाइल्डहुड ही हैड एन इंसिडेंट विद हिज फादर. वो पानी के किनारे था और अचानक गिर गया पानी में. ही वॉज फियरफुल फ्रॉम दैट टाइम. लॉन्ग क्वेश्चंस. हाउ डिड डगलस ओवरकम फियर? एंड द आंसर इज through determination and systematic training with an instructor, he gradually learned swimming and defeated his fear. इस चैप्टर में आप देखेंगे कि कई बार हारने के बाद, कई बार डरने के बाद विलियम डगलस ने हिम्मत नहीं हारी. एंड ही हैड डिसाइडेड कि नहीं, अब ये पानी से डरना नहीं है, मुझे इस डर को ओवरकम करना है. दैट्स वाई उसने ट्रेन किया अपने आप को और बार बार पानी को चैलेंज किया और फाइनली ही डिड समथिंग बिग. वेयर डिड डगलस ऑलमोस्ट ड्राउन? तो ये बात हो रही है चाइल्डहुड एक्सपीरियंस के जस्ट बाद, जब वो पहली बार स्विमिंग पूल पे गया था. तो आंसर इज स्विमिंग पूल. द रैट ट्रैप. एक पुअर पेडलर है हु सेल्स रैट ट्रैप. ही बिलीव्स दैट दिस होल वर्ल्ड इज लाइक अ बिग रैट ट्रैप हु इज इन हैप्पी स्टेट दैट आई एम आउट ऑफ इट, because he knows that it happens only, you are caught in the big rat trap only when there is a greed. Greed is something that traps people. But जिस चीज़ का डर था वही हुआ. उसने खुद ही he steals money from a crofter और later on he realizes his mistake. He regrets after meeting Edla. Edla उस आयरन मास्टर के डॉटर है, उस आयरन फैक्ट्री के मालिक की बेटी है, जो इतना अच्छे तरीके से उसको ट्रीट करती है कि वो महसूस करता है कि आई शुड नॉट चीट दिस फैमिली एंड आई शुड एक्सेप्ट माई मिस्टेक. उसने 30 क्रोनोस चुराए थे और उसके बदले में उसने वहाँ वो पैसे रख दिए और एक लेटर लिखा, एक छोटा सा रैट ट्रैप एज अ गिफ्ट बना के वहाँ छोड़ के वो चला गया, अपने आप को ये कहते हुए कि मैं वही कैप्टन की तरह रहना चाहता हूँ जिस पे विश्वास करके, जिसको समझ के आप मुझे अपने घर बुलाए थे, जबकि मैं वो था नहीं. The message of the chapter is kindness and compassion can transform people. एक MCQ देखते हैं. Who showed kindness to the peddler? तो करेक्ट आंसर है एडला, डॉटर ऑफ द आयरन मास्टर. नेक्स्ट चैप्टर, इंडिगो. This chapter describes how Mahatma Gandhi helped farmers in Champaran who were forced to grow indigo by British landlords. Question है, where did Gandhi start the movement? और मूवमेंट स्टार्ट हुआ वहीं से जहाँ से राजकुमार शर्मा आया था, जिसने ये सारी चीज़ों की शुरुआत की थी, जिसने गांधी जी को बताया था कि चंपारण में क्या हो रहा है, कैसे इंडिगो की खेती के लिए फोर्स किया जा रहा है, कैसे जो लोग हैं वो समझ नहीं रहे हैं कि द गवर्नमेंट इज़ टेकिंग एक्स्ट्रा बेनिफिट ऑफ दीज पीपल. वो उन्हें इंडिगो क्रॉप की खेती ज़बरदस्ती करवा रहे थे और अब वो खुद ही बंद करना चाहते हैं, बट कॉम्पनसेट करने की बजाय वो चाहते हैं कि हम इनको ही वापस पैसे दें, किसान पैसे दें अंग्रेज़ों को. तो यहाँ पे आंसर है चंपारण. Poets and Pancakes by Ashoka Mitra. This chapter describes life inside Gemini Studios and the author's experiences with writers and film personalities. तो Gemini Studio वो स्टूडियो था जिसमें बहुत सारी मूवीज़ बनती थी, बहुत सारे कलाकार आते थे और इनके ही साथ साथ कुछ राइटर्स, कुछ ग्रेट फेमस पर्सनालिटीज़ भी आई स्टूडियो में. और पैनकेक जो वर्ड है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है. पैनकेक यहाँ पे वो ब्रांड है जो कि मेकअप बनाता था. एक और चैप्टर, द इंटरव्यू, एक्सप्लेन्स द पावर एंड कंट्रोवर्सी ऑफ इंटरव्यूज़. सम राइटर्स लाइक V.S. Naipaul डिसलाइक इंटरव्यूज़. इंटरव्यू हमारे लिए मनोरंजन हो सकता है, बट एक्चुअली इंटरव्यू कहीं ना कहीं किसी के भी पर्सनल लाइफ पे अटैक भी है. ये क्वेश्चन पूछने वाले के पास कोई भी ये नहीं होता है कि वो कैसे पूछे, क्या पूछे, वो कुछ भी पूछ लेता है और बदले में क्या होता है, जवाब देने वाला कई बार घबरा जाता है, डर जाता है या उसकी बहुत सारी पर्सनल बातें शेयर हो जाती हैं. नेक्स्ट चैप्टर है गोइंग प्लेसेस.
इसमें एक सोफ़ी नाम की लड़की है हु इज़ अ टीनेजर हु ड्रीम्स ऑफ मीटिंग फुटबॉल स्टार डैनी कैसी अ सेलिब्रिटी। ये चैप्टर बेसिकली हीरो वर्शिपिंग पे है कि कैसे टीनेजर्स जो हैं वो हीरोज़ को वर्शिप करते हैं, और कई बार सोफ़ी जैसे जो बच्चे होते हैं दे डू नॉट कंपेयर द रियलिटी एंड ड्रीम्स, वो दोनों में किसी एक को नहीं चुन पाते हैं, वो दोनों में जीना चाहते हैं, और एज एन एल्यूजन बाकी लोग उन्हें समझते हैं ये तो कुछ नहीं समझते, इन्हें रियलिटी और ड्रीम का डिफरेंस ही नहीं पता। अब एक पोएम है माई मदर एट 66 बाय कमला दास। ये पोएम बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है क्योंकि ये एजिंग एंड फियर ऑफ लूजिंग मदर के ऊपर है। एक कार में माँ और बेटी दोनों बैठे हैं एंड एट दैट टाइम जो बेटी है वो रियलाइज़ करती है उसकी माँ अभी बूढ़ी हो रही है, और हो सकता है नेक्स्ट टाइम जब वो आए घर पे तो उसकी माँ उसको ना मिले। इस तरह से एक चैप्टर है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। ये चैप्टर डिलीटेड है पर इसका थीम है पॉवर्टी एंड नीड फॉर एजुकेशन। इस पोएम में ये बताया गया है कि एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, नाम तो स्कूल का है बट एक्चुअली स्कूल के अंदर वो सारी फैसिलिटीज़ मिसिंग हैं। ये जस्ट ऑन पेपर चलने वाले स्कूलों की तरह है जहाँ कोई बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती हैं। फिर एक पोएम है कीपिंग क्वाइट बाय पैब्लो नेरुदा, और ये पीस एंड इंट्रोस्पेक्शन के ऊपर है। पोएट कहता है कि आई विल काउंट अप टू सब नंबर्स अप टू 12 एंड आफ्टर दैट सभी लोग अपने अपने बारे में सोचेंगे, कोई कोई काम नहीं करेगा, और इन दिस वे विल गेट सम टाइम टू डू अ सुपर एक्टिविटी इंट्रोस्पेक्शन। नेक्स्ट पोएम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी बाय जॉन कीट्स, एंड दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट हाउ द नेचुरल थिंग्स आर वेरी ब्यूटीफुल। नेचर इज़ ब्यूटीफुल, इट प्रोवाइड्स हैप्पीनेस। नेचर से बड़ा हीलर कोई नहीं है, नेचर से ज़्यादा सुंदर कुछ नहीं है। फिर है आंट जेनिफर टाइगर्स, एडविन रिच की पोएम विच इज़ ऑल अबाउट द वीमेन एम्पावरमेंट। यहाँ पे आंट जेनिफर जो है वो अपने हस्बैंड से हैप्पी नहीं है, वो एक एम्ब्रॉयडरी बना रही हैं जिसमें उन्होंने टाइगर्स बनाए हैं, एंड इट इज़ अ सिम्बॉलिक पोएम। ये टाइगर्स इस बात के सिंबल हैं कि जैसे टाइगर्स खुले तरीके से रहते हैं, एंजॉय करते हैं लाइफ, वैसे ही आंट जेनिफर भी अपने हस्बैंड से दूर, अपने हस्बैंड की उस रिंग से दूर, उस बंदिश से दूर रह के अपनी लाइफ को जीना चाहती है, लेकिन नहीं जी सकती है, तो वो टाइगर्स बना रही है एज अ सिंबल। अभी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे व्हाट मैसेज डज द लास्ट लेसन गिव अबाउट लैंग्वेज एंड फ्रीडम। तो इसमें आप लिंग्विस्टिक शावरिज्म के बारे में लिख सकते हैं। डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ रैग पिकर्स इन लॉस्ट स्प्रिंग। लॉस्ट स्प्रिंग वो चैप्टर है जो बोलता है कि इन छोटे बच्चों की लाइफ से स्प्रिंग का जो सीज़न है वो गायब हो चुका है। तो इस पूरी कहानी का समरी आप लिखेंगे। हाउ डिड डगलस कंकर फियर इन डीप वाटर। सो दिस इज ऑल अबाउट हिज बैटल टू कंकर द फियर ऑफ deep water, how he learned swimming and how finally he was able to remove his fear. Why is the world compared to a rat trap? रैट ट्रैप में जैसे एक बेट लगा के हम चूहे को फंसा लेते हैं, वैसे इस दुनिया में बहुत सारी लग्जरियस चीज़ें हैं जिनको लेके हम ज़िंदगी भर कोशिश करते हैं और फंसते जाते हैं। How did Gandhi help farmers in Champaran? So here this chapter was all about indigo cropping, और उसके बाद कैसे उनको compensation नहीं मिला था, तो गांधी जी helped the people of Champaran कि कैसे they are not eligible to pay, actually they should be paid back। आप कुछ MCQ करते हैं। The story Lost Spring highlights poverty, education, child labor, agriculture. Correct answer is child labor. A Thing of Beauty was written by Keats, Wordsworth, Frost and Eliot, and the correct answer is Keats. Sophie belonged to a rich family. Middle class, poor family and royal family. The correct answer is she belonged to a